آج جن شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اس وقت بہت ہی زیادہ ایک ریپیوٹڈ ادارہ ہے پاکستان کا، المصطفیٰ ٹرسٹ کے نام سے، اور اس کی وہ پاکستان میں جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اس کی پوسٹ پہ موجود ہیں اور کافی عرصے سے یہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مسز نصرت سلیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، صبح خیر، کیسی ہیں آپ؟ اور شی از واکنگ ٹورڈز اس۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ السلام علیکم، صبح خیر، کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ پلیز آئیے۔ آئیے، یہ آپ کو جو بھی نشست کہا گیا آپ اس طرف بیٹھ جائیے، پھر سر۔ اچھا، ان کے ساتھ ہی جو ہے ایک اور شخصیت کو بھی ہم نے دعوت دی ہے جو المصطفیٰ ٹرسٹ کا ہی حصہ ہیں اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں وہاں پر۔ یہ ہیڈ ہیں میڈیا کے اور ان کے پی آر کے، ہمارے ساتھ موجود ہے جی محمد نواز کھرل صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، صبح خیر، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر۔ کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی باتیں سن کے اور اچھے ہو گئے۔ اور اچھے ہو گئے، چلیں گے، بہت بات تو شکریہ، اچھی ہے۔ بہت نائس کمپلیمنٹ۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ہمیں ہمارے شو میں آنے کے لیے۔ بہت ہی زیادہ بہترین کام جو ہے المصطفیٰ پاکستان میں کر رہا ہے اور پہلے بھی ہم اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو لنک کیا ہے ہم نے اسے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم اسی ٹاپک سے اپنے لنک کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیلف لو اور سیلفشنس انسان اس میں فرق ہے؟ اچھا، آبسیشن میں اور سیلف لو میں فرق ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلف آبسیسڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں نے آپ دونوں کی گفتگو اس سے پہلے جو آپ نے کی وہ سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا بھی یہ مفہوم ہے کہ انسان کے نفس کا اس پر حق ہے، کہ انسان کا اپنا بھی اپنے اوپر حق ہے کہ وہ خود کا خیال رکھے۔ جب وہ خود کا خیال رکھے گا تو اس کی صحت اچھی رہے گی، یہاں تک کہ اگر وہ اس نیت سے سو جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ٹائم پہ اپنی نماز پڑھے گا تو اس کا بھی اجر ہے اس کے لیے، اس کی نیند بھی اس کے لیے جو ہے وہ اجر ہو سکتی ہے۔ آپ نے میری جو جتنی بات اسے باکس میں کر دیا، اور بہت اچھی بات کہ ہم اگر خود کا خیال رکھیں گے تو ہم دوسروں کا خیال رکھ سکیں گے۔ ایبسلیوٹلی۔ لیکن فرق وہاں پہ آتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ خاص طور پہ خواتین کی اگر میں بات کرتی ہوں تو جب وہ خود کو جو ہے دوسروں کو موقع دیتی ہیں، چاہے ان کے ہسبینڈ ہیں، چاہے بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی hمارے ساتھ دنیا کے اندر رشتے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ، ایون ہمارے دوست، ہم جب ان سب کو ایک اپنی خدمت سروس دیتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا ہے کہ عورت خود کو کھو دیتی ہے ان کی خوشی کی خاطر، ان کو ایز دینے کی خاطر، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی خاطر، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ کے ساتھ رہنے والے رشتے جو ہیں وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینکفل نہیں ہوتے، وہ تھینکفل آپ کو روٹی والی بات میری سننی تھی، جب میں کہتا ہوں روٹی دینے لگتا ہے تو مجھے بڑی اچھی لگی، تو وہ دینے لگتی ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ اس نے کہا نہ، کہتے سامنے پڑھیے لے لیں، تو اس نے روٹی لے لی، تو دس واز اے لائن جو اس نے ڈرا کی کہ یار میں ہر وقت اویلیبل تو نہیں ہونا۔ گھر کے کام کرنا تو مجھے لگتا ہے موسٹ تھینک لیس جاب ہے، آپ جتنے مرضی کرتے رہیں کوئی آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آپ جب اپنی پروفیشنل جاب میں آتے ہیں تو آپ اگر کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے، آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کا آفس ایکنالج کر لیتا ہے آپ کی سروسز کو، لیکن برسوں سے، گھر سے ماں کو دادی تو نہیں بنا دیں گے، وہ کہیں گے دادی بن جاؤ۔ ڈیکیڈز فرام ڈیکیڈز ہماری خواتین گھر میں 24 گھنٹے آپ دیکھیں نا آن ڈیوٹی ہیں، صبح وقت پہ اٹھیں گی، بچہ ٹائم پہ اسکول جائے گا، ہسبینڈ ٹائم پہ آفس جائے گا، گھر کا سب ہوگا، دوپہر میں بچے واپس آئے گا، ان کے لیے کھانا بننا ہوگا، ان کی لانڈری، ایوری تھنگ، ان کی ایجوکیشن، یوٹیلیٹی بلز وقت پہ ادا ہوں گے، سب سروس ہو رہی ہے، لیکن ایکنالج نہیں کر رہے۔ میڈم آج آپ کی بات سن کے میرا دل کرے میں گھر چلا جاؤں، کیونکہ آپ اتنا اچھا بول رہی ہیں، اور آج آپ نے جو ساتھ آپ کے موصوف بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہی میری بیگم بھی سن رہی ہوگی، کیا کر رہی ہیں، بس کر دیں، اتنا نہ کہیں کہ میں گھر نہ جا سکوں، لیکن بڑا اچھا خوبصورت آپ نے بہت اچھا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بس اب کوئی شو ڈھونڈیں، اور اتنا اچھا آپ بول لیتی ہیں، اتنا اچھا آپ سکھا لیں گی، مجھے تھوڑا سا خطرہ لگنے لگا اپنی سیٹ کا، پر شکر ہے آپ خاتون ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے، بے پکا رہوں مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حلیمہ نے بڑی خوبصورتی سے آپ لوگوں کا ایک سٹارٹ کیا، لیکن میرے خیال میں یہ خود غرضی ہوگی اور سیلفشنس ہوگی اگر میں سر سے نہ پوچھوں۔ سر کیا خیال ہے آپ کا سیلف آبسیشن پہ
और सेल्फ लव पे आप जी, जी। किधर किधर हैं आप, किस तरफ? इसमें एक चीज़ तो बहुत पॉजिटिव है और एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि जो सेल्फ लव है, अपने आप से मोहब्बत, ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो कोई और भी आपसे मोहब्बत भी नहीं करेगा, आपको अहमियत भी नहीं देगा। और इसको अगर हम एक और इस्तिलाह इसके लिए इस्तेमाल करें तो वो है इरफान ज़ात। तो आपको इरफान ज़ात होना चाहिए। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपनी सलाहियतों का आपको इतराफ़ होगा, इदराक होगा, तो उससे आपकी ज़ात के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। तो ये अपने आप से मोहब्बत तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इस पे एक मुझे बहुत भूला हुआ शेर याद आ रहा है, इन लाइटर मूड। वो इस मेरी राय के बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन आपके सुनने वालों को अच्छा लगेगा, खास तौर पे नौजवान गुस्सा नहीं आना चाहिए सर। शेर ये है कि बिल आखिर थक हार के यारो हमने तो ये सोचा है, बिल आखिर थक हार के यारो हमने तो ये सोचा है, अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। ओए होए, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते, कहीं मच जाएगा। देखते रहिए कौसब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो पर हमारे साथ मिस नुसरत भी मौजूद है, नवाज साहब भी मौजूद है। मिस नुसरत, आपकी तरफ आऊँगा। कुदरती आफात पाकिस्तान ममालिक में से मौजूद है जहाँ पे कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आती हैं। हमारा इनपुट बहुत कम है, ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन हम इससे इफेक्ट बहुत होते हैं। अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। इसकी मिसाल इस तरह है कि जब हम कहीं पे भी देखते हैं, कहीं खिदमत का काम कर रहा होता है कोई, या मदद का काम कर रहा होता है, तो उसमें अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट का नाम ज़रूर शामिल होता है। बिल्कुल। अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह काम कर रही है। इस सारी बात को करते हुए सवाल मेरा आपसे ये है कि कुदरती आफात में मदद तो की जाती है, लेकिन सिर्फ फौरी मदद की जाती है। उसके बाद उनका क्या होगा ये कोई नहीं देखता, क्योंकि उनके माल मवेशी सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उस वक्त फौरी मदद तो ठीक है, बना दिया, टेंट लगा दिया या 4 दीवारियां लगा दी, उसके बाद उनका क्या अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट आखिर तक जाता है उनके साथ? जी बिल्कुल ऐसे है। 2025 अभी रिसेंट जो लास्ट ईयर का था, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि पंजाब के तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये इफ़ेक्ट किया था लोगों को। ये बात सच है कि बहुत सारी इदारे, बहुत सारी NGOs जिस वक़्त एक मुसीबत आप कह लें कि नाजिल होती है, उसी वक्त फील्ड में होते हैं। अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में जो हमारी प्रोग्राम टीम है, हम जो प्रोग्राम्स तरतीब देते हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। आपको ये सुनकर शायद हैरत हो कि 2025 में जिन इलाकों में हमने रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू किए थे, हमारी टीमें अभी तक उन इलाकों से वापस नहीं आई हैं। अभी हमने 2 माह पहले तकरीबन जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टेड एरिया था अलीपुर, वहाँ का एक मोज़ा लत्ती है, वहाँ पे अलमुस्तफ़ा का टाउन बनाया, अलमुस्तफ़ा टाउन बनाया। वो लोग जो हमारे टेंट टाउन्स में थे, हमारी खैमा बस्ती में रहाइश पजीर थे, उन्हीं में से जो आप कह लें कि मोस्ट डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, हमने उनके लिए एक जो है वो टाउन बनाया है, 7 मस्जिद बनाई है। ठीक है। इसी तरह से कसूर के अंदर और जलालपुर पीरवाला में अभी तक हमारी मकानों की कंस्ट्रक्शन जारी है। और जिस वक़्त से सैलाब आया, हम उन इलाकों से नहीं निकले। हमने सबसे पहले साफ़ पानी और कुक मील के ज़रिए उनकी जो है उनको सर्विस देना या उनको फैसिलिटेट करना शुरू किया था। उसके बाद हमने मेडिकल कैंप किए, ट्रामा कैंप किए, फूड बास्केट्स दी और कई लोगों को उनके छोटे बिज़नेस करने में, ताकि वो अपना खुद से कमाने के काबिल हो सके, उनकी मदद की। इसी तरह से हमने जानवरों के चारे का बंदोबस्त किया। वो बहुत मुश्किल वक्त था। अगर किसी के पास कोई 1-2 एनिमल्स या कॉज या बफ्स बचा भी था, गोट्स बची भी थी, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास अपने खाने का नहीं था, वो उनके लिए चारे किस तरह दाने का कैसे बंदोबस्त करते। उसके बाद जो है हमने वहाँ पे सर्वेस किए, काफ़ी जगह पे हमने सीड्स दिए उसके बाद की जो फसल थी, ताकि वो काश्त कर सकें। अब तक हमारी टीमें वहाँ पर जो है, रमज़ान में हमने बहुत काम किया सहरी अफ्तारी को लेकर, ताकि जो इफ़ेक्टेड इलाके हैं, ईद पर हमने बच्चों के कपड़े, जो चीज़ें ज़रूरत
का सामान था वो सब दिया। आपने मुहैया ठीक हाँ है, जी। ठीक है अभी ना। तक हम वहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्कुल। और ज़रूरत भी इसी अमर की है कि हर इदारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को लेकर आए उन इलाकों में। मैं आज आपके अगर तवज्जुह उनके से पास वसाइल है। हाँ जी, हाँ जी, आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत स्किल जो है इंस्टीट्यूशंस की है, ताकि बच्चे लंबी, जैसे BS बहुत लॉन्ग आप कह लें कि 4-5 इयर्स एजुकेशन है, तो अगर वो स्किल सीख जाएंगे तो वो आसानी से बिल्कुल हर ठीक हाल है, में अपना बिल्कुल रिस्क ठीक है। कमा सकेंगे। इसी से नेक्स्ट जो मेरा सवाल है नवाज साहब आपसे, वो क्योंकि आप मीडिया और PR को देखते हैं, आजकल हम देखते हैं कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाई जाती है उसी को लोग सच्चा मानते हैं या उसी की तरफ लोग जी जी आते हैं, उसी को लोग याद रखते हैं। जी जी कोई वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा हाँ। किसने देखा। तो अब ये एक ज़रूरत बन चुकी है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका हमने हर दिखना। जगह प्रचार करना है ताकि लोगों को याद रहे, और हो सकता है कि याद रहने के बाद वो मदद की तरफ नहीं आए। आपको क्या लगता है मीडिया का इसमें रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आप लोग किस तरह से काम करते हैं? अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कामयाब हैं वो लोगों को किस तरह से दिखाते हैं, और उससे क्या फ़ायदा होता है? लोग क्या वाकई वो चीज़ें देखने की के बाद और ज़्यादा मदद की तरफ बढ़ते हैं और ज़्यादा आप लोगों को सताइश देते हैं कि हाँ आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं। आपने तो इसका पॉजिटिव पहलू बयान किया कि लोग देखेंगे तो ज़ाहिर उनको पता चला गया और वो डोनेट करेंगे और काम आगे बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ करते हैं कि ये नहीं दिखाया जाना बिल्कुल ठीक है। चाहिए। लेकिन आपके इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी मजबूरी है और एक तरह से ये एक पॉजिटिव काम है, क्योंकि हमारा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, उस पर नेगेटिव चीज़ों को, मायूसी वाली चीज़ों को ज़्यादा नुमाया किया जाता है। उससे एक फ्रस्ट्रेशन फैलती है कि शायद हमारे माशरे में है ही मनफियत, मुस्बत कोई चीज़ है ही नहीं है। तो जब मुस्बत कामों को प्रमोट किया जाएगा वो बार बार लोग देखेंगे। हमारा लाहौर में अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल है, लोगों को पता चलेगा कि इस मुल्क में एक ऐसा भी हॉस्पिटल है जहाँ पर्ची से ऑपरेशन तक तमाम सहूलियात मुफ्त है, जो कि लाखों रुपए का ऑपरेशन, जो लाखों रुपए का ऑपरेशन है वो फ्री होता है और रोजाना लोग वहाँ पे आके इस्तेफादा करते हैं। तो ये एक खूबसूरत चेहरा है हमारी सोसाइटी का। इसी तरह जब लोग देखेंगे कि इसी हॉस्पिटल के साथ एक अल मुस्तफ़ा दस्तरखान है जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग आके साफ सुथरा ताज़ा पका हुआ खाना, जिसमें हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, वो कुर्सियों मेज़ों पे बैठ के बाइज्जत तरीके से खाते हैं, तो हमारी सोसाइटी का एक खूबसूरत चेहरा सामने आएगा। इसी तरह जब लोग देखेंगे कि अल मुस्तफ़ा ने हर रोज़ पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं फ्री आई कैंप लगा रखा होता है, लोगों की दहलीज पे पहुँच के चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, बहुत दूर दराज इलाके, पसमानदा तरीन इलाके जहाँ जाने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं है, तो वहाँ अगर जाके कोई टीम गई है, उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया है, लोगों की आंखें चेक हो रही हैं, उधर ही ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, वहाँ लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं और बुझी हुई आंखों को फिर से रोशनी मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ लोग मीडिया के ज़रिए देखेंगे तो ज़ाहिर है उससे लोगों के अंदर एक अच्छा जज्बा पैदा होगा और उनमें और ये जो खैर और नेकी और भलाई के काम है इसमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने का जज्बा पैदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे भी उनको चाहिए कि वो ये मनफी चीज़ें, लोगों को बिठा के लड़ाई रखना, आप कितना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे हैं, तो ये बहुत इससे हटके हमें पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना चाहिए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के इस वक्त 3 हॉस्पिटल है, लाहौर का मैंने जिक्र किया है, इसी तरह एक अटक में हमारा हॉस्पिटल है, वो जनरल हॉस्पिटल है, मानसेहरा में एक डोडिहाल कस्बा है हज़ारा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ, वहाँ पे अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल है, 6 मंजिला शानदार बिल्डिंग है, 3 बेसमेंट हैं, हर तरह का वहाँ पे मशीनें मौजूद हैं, हर तरह का इलाज होता है, हज़ारों लोग इस्तेफादा करते हैं। इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। नवाज साहब मैं आप नुसरत साहिबा से एक सवाल करना चाहूँगा। नुसरत साहिबा, नागहानी आफत नुसरत के लिए कुछ और होगा, हुमायूं के लिए कुछ और होगा और शायद मेरे इधर जो जिस स्टूडियो में मौजूद लोग हैं उनके लिए कुछ और होगा। अगर हल्की सी बारिश हो जाए, मेरी छत टपकेगी तो मेरे लिए वो नागहानी आफत है। मेरे घर में राशन मौजूद नहीं है तो मेरे लिए वो नागहानी आफत है। तो क्या अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट नागहानी आफत की कोई डेफिनेशन है उसके पास या नहीं? अगर मुझे माहाना खर्चा चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जाके स्कूल पढ़े, तो उसके लिए भी अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट कोई ना कोई काम करती है, मेरे लिए वो नागहानी आफत है, तो उस पर भी काम किया जाता है? जी, असल बात यह है कि अल मुस्तफ़ा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कैटरेक्ट जैसा कि बताया फ्लैगशिप है, वॉश वाटर एंड सैनिटेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
बच्चों की एजुकेशन को लेके हमारे चोलिस्तान और बलूचिस्तान में कुछ नॉन फॉर्मल स्कूल्स हैं, फॉर्मल स्कूल्स भी हैं। बाकी हम इंडिविजुअल्स को भी हेल्प करते हैं। अगर कोई monthly हमारी राशन नहीं ऑर्फन ले सकता स्पॉन्सरशिप है, अगर कोई मंथली राशन नहीं ले सकता और वो फैमिली हमारे पास आती है और हमारी टीम सेटिस्फाई भी हो जाती है। देखें जो हमें- क्राइटेरिया उससे। हाँ जी, हमारा चैलेंज ये है कि हमारे को यहाँ पर हकदार तक पहुँचना और अपना सामान उस तक पहुँचाना। देखें, जो कुछ हमारे हाथ में है, अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के पास है, वो अमानत है और हम अमानतदार हैं, और उसकी बहुत सारी चीज़ों में हम शरिया कंप्लायंस की वजह से भी मजबूर हैं कि जिस चीज़ के लिए दिया गया है हम उसी पर खर्च करें। जैसे अगर ज़कात किसी ने हमें दी है तो ज़कात के अपने मसारिफ हैं जिन पर वो खर्च की जा बिल्कुल सकती है। दुरुस्त। तो हम अपनी कैपेसिटी में हर वो बंदा जो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट को अप्रोच करता है उसका मसला हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे फूड ड्राइव्स हैं वो साल में अक्सर होती रहती हैं। इसी तरह से हमारा अगर दस्तरखान पे आए तो पूरी फैमिलीज आती हैं, खाना खाती हैं और सहरी इफ्तारी करती रही हैं। सुबह दो टाइम खाना सर्व किया जाता है, कोई भी आके खा सकता है। तो नगाहानी आफत की मुराद अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट से ये है कि कोई भी मदद के लिए अगर हाथ बढ़ाएगा, वो क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसे मदद ज़रूर होगी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे ताकि हम दोनों पाकिस्तान को मिलकर, हम सब पाकिस्तान को मिलकर बेहतर बना सकें। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौन सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम वेलकम बैक आफ्टर बैक द ब्रेक। हमारे साथ जो है वो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दो बहुत ही ज़्यादा अहम शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। नवाज साहब, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएं कि डिफरेंट आप लोगों की जो ऑपरेशंस है उसके हवाले से हम पढ़ भी रहे थे, हमें सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद होती हैं। ऑर्फन स्कॉलरशिप आप लोगों का एक प्रोग्राम है, उसके हवाले से बताएं, उसमें किस तरह से क्राइटेरिया है और किस तरह से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तमाम तर चीज़ें आप लोगों ने दी हैं। स्कॉलरशिप इसलिए लिखा हुआ है कि उसके अम्ब्रेला के अंदर सब कुछ आ जाता है, तालीम भी आ जाती है, न्यूट्रिशन भी आ जाती है, हेल्थ केयर भी आ जाता है, तमाम तर चीज़ें। तो उसके लिए कोई अप्लाई कैसे कर सकता है, और अगर कोई अप्लाई करता है तो फिर आप उसको किस किस तरह लेके चलते हैं? क्या सिर्फ अपने इदारों से ही पढ़वाते हैं या नहीं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहे, कहीं से भी तालीम हासिल करना चाहे, आप उसे सपोर्ट करते हैं? एक तो अहम तरीन बात यह है कि हम जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं और उनकी जो माएँ हैं सिंगल मदर उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। बिल्कुल आम तौर पे जो बच्चे हैं वो किसी अगर ऑर्फन हाउस में चले गए हैं तो पीछे माँ का तो कोई पुरसान हाल नहीं। तो हम बच्चे जो ऑर्फन बच्चा है उसको भी सपोर्ट करते हैं। माहाना उसका हमने एक स्कॉलरशिप मुकर्रर कर रखा है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए, उसके कपड़ों के लिए, और उसकी माँ को भी सपोर्ट करते हैं। मज़ीद इसका तरीक़ेकार क्या है वो सिस्टर बताएंगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो ये है कि अभी जो आपका एक टॉपिक भी था कि सेल्फिश नहीं होनी चाहिए जी। तो मुझे एक और शेर याद आ गया, वो ये, और वो हमारे मिशन से भी रिलेट करता है, मैं क्योंकि कहता हम हूँ खिदमत इरशाद। खल का काम इरशाद, करते हैं। इरशाद और खिदमत खल का काम ये है कि इसार और कुर्बानी, अपने आप को पीछे करें, किसी दूसरे को आगे करें और दर्द बांटें। आप किसी को आसानी फराहम करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। तो शेर ये है कि अपने लिए तो जीते हैं सब भी इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। दूसरा हमारा स्लोगन है जिसमें हमारा ये सारा जो मैसेज है अल-मुस्तफ़ा का वो सिमट आता है कि मखलूक से भलाई, खालिक तक रसाई। हम ये समझते हैं कि खालिक तक पहुंचा ही नहीं जा सकता मखलूक से भलाई के बगैर। तो अल्लाह तक पहुंचने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जो सबसे मुख्तसर रास्ता है और आसान है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के दिलों से। नवाज साहब, जब रास्ते की बात की जाती है तो नुसरत साहिबा आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की, और ये बहुत बड़ी और अहम पोजीशन है इस ऑर्गेनाइजेशन की। नुसरत साहिबा, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मुश्किल काम है, मदद तो आ जाती है,
पाकिस्तान में बहुत डोनर्स हैं, ये वाहिद वो उन मुल्कों में से है बहुत जिसके ज़्यादा। जो आप इकोनॉमिकली बड़े हम वीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डोनेशन है वो पाकिस्तान से जाती है, उन मुल्कों में पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान से की बाहर भी बहुत सारे ऐसे मुकीम पाकिस्तानी हैं जो बहुत ज्यादा मदद करते हैं पाकिस्तान में लोगों एब्सोल्युटली। की। और अगर अब इसको और टेकल डाउन ऊपर ऊपर चले जाएं, टेकल डाउन नहीं, इसको हम अप लेके जाएं, तो मुसलमान बरादरी जो है वो बहुत डोनेशंस करती है, चैरिटी करती है। अब मसला जो असल संगीन आता है कि वो सही जगह पर लगती है कि नहीं लगती है। हम अक्सर उनको पैसे दे देते हैं, हम अक्सर उनकी मदद कर देते हैं जिन्हें मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो एक प्रोफेशन होता है, वो एक पेशा होता है, और पेशा वराना फ़कीर होते हैं जिन तक वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट कैसे यकीन दिलाएगा आज हमारी इस ऑडियंस को कि आपके पास जो पैसा आता है वो सही जगह पर लगता है? देखिए, सबसे पहले तो जो जिस बात की तरफ इशारा किया अल मुस्तफ़ा का जो क्राइटेरिया, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अगर कोई ख़वातीन रिक्शे में बैठ रही हैं ना, तो वो उसके साथ इतना मोल भाव करेंगी, रेडी से चीज़ लेने लगेंगी, तो एक बूढ़ा लाचार बंदा भी बैठ के बेच रहा है ना, उससे भी 20 रुपए तक के 1 किलो पे कम कर दो, इतना बहस करने वाली हम कौम है। लेकिन वही औरत रिक्शे वाले से बहस करके जब रिक्शे के अंदर बैठ गई है, उसको वो 50 रुपये कम दे रही है, वो 250 मांग रहा है, वो 200 दे रही है। लेकिन जैसे ही वो बैठेगी, एक फ़कीर आया, वो उसको 100 रुपया देगी, लाजमी निकालेगी और फ़ौरन उसको दे देगी। हमें मिन हैसुल कौम खुद को अमेंड करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आप बच्चों को पढ़ने के लिए दें, किसी बच्चे की फ़ीस देना शुरू कर दें। आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है ना, आप किसी एक बच्चे की फ़ीस देना शुरू कर दें। आप अपने बच्चों के कपड़े बना रहे हैं, साथ किसी एक बच्चे के को कपड़े ले दें। लेकिन बेगर्स को मत दें, बेगर्स को मत दें। जहाँ तक अल मुस्तफ़ा की बात है, हमारे पास बहुत शफाफ हमारा सिस्टम है। जब कोई हमारे पास डोनेशन आता है, हम पूछते हैं कि ये ज़कात है, सदका है, गिफ्ट है, क्या है। उसके बाद बाज़ डोनर्स ऐसे हैं, जैसे वो कहते हैं हमारी तरफ से आरओ प्लांट लगा दें, एक ऑर्फन को स्पॉन्सर कर दें, किसी बच्चे की फ़ीस दे दें यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है, या हमारे लिए कोई नलका लगवा दें, हमारी कोई मस्जिद बनवा दें। अच्छा नुसरत साहिबा, आपने यहीं से कंटिन्यू करना है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सब में हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग।